नमस्कार। मैं तस्नीम सैफ़ी और आप देख रहे चैनल तस्नीम्स विज्ञान शास्त्र। सो वेलकम टू सिंपल एंड स्मार्ट लर्निंग बाय तस्नीम सैफ़ी. So, you know, children, we have started with Standard 10th Science and Technology Part 1. In this, we have studied few lessons, and today we are going to study about the heat. As you know, we have already started and we have completed the topic latent heat and regulation. Now, today we are going to study anomalous behavior of water. In this, you know that in general, when a liquid is heated up to a certain temperature, it expands, and when cool, it contracts. But the water is an exceptional case, special, so it shows the behavior differently. That we will see in detail. But you know, before that, we will learn about the water. Now, what is water? You know, जल की महत्ता को बयां हम कर नहीं सकते, बिना पानी के जीवन में हम रह नहीं सकते. एंड द वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ. नॉर्मली वाटर हैज़ मिनरल्स एंड गैसेस डिजॉल्व इन इट. और ये जो मिनरल्स और गैसेस पानी में होते हैं, ये पानी को थोड़ा सा टेस्ट देते हैं. लेकिन आप जानते हो, प्योर वाटर जो बॉइल्ड वाटर होता है वो टेस्टलेस होता है. सो यू नो that water is an inorganic, transparent, colorless substance, and along with that it is really a life for all living being. Without water we don't have life. पानी नहीं, जल नहीं तो लाइफ नहीं, जीवन नहीं. So let's have some properties about the water. Now the density of water is 997 kilogram per meter cube, and the boiling point of water is 100 degree Celsius. पानी जब उबलता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और पूरा पानी जब तक स्टीम ना बन जाए वो टेम्परेचर चेंज नहीं करता है. सिमिलरली, for the melting point of water is 0 degree Celsius, and you know, below 0 degree Celsius it changes into the solid substance, that is ice. Ab formula, it is H2O, 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen. अब पानी का मोलर मास होता है 18.01528 ग्राम पर मोल. एंड यू नो द IUPAC ID, दैट इज वाटर भी कहा जाता है और ऑक्सीजन भी कहा जाता है. तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज अबाउट द वाटर. You know that the most important and interesting part about the water, पानी हमें तीनों स्टेट्स में मिलता है. स्टेट्स इन द सेंस that is the solid, liquid and gaseous state. So we get water in solid, liquid and gaseous. In gases the molecules are spreaded, and that's why they are compressible. And in liquid, already we have studied these three states in the 8th and 9th standard, but little bit review. Liquid, in the liquid the particles, the molecules are little bit spreaded, that's why it is flowing substance. ये स्प्रेड होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल्स है, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि किस तरह से ये मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे स्प्रेडेड है, जो लिक्विड बनाता है, फ्लो होता है. एंड द सॉलिड वन इज द ice, that is all the molecules, particles are tightly attached to each other, there is no intramolecular space. इनके बीच में इतना स्पेस नहीं होता है, और जिसकी वजह से ये सब्सटेंस सॉलिड होता है. एंड यू नो वन मोर थिंग, द वाटर इज द सब्सटेंस विच इज हैविंग द 3 states, and it also converts the liquid, that is it converts into gaseous as well as in the solid state, and vice versa. ये टेम्परेचर लो करो या हाई करो, हमें स्टेट्स चेंज हो जाते हैं वाटर के. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द water. Now moving ahead, you know that these changes in the states of matter also and water also, how it happens.
Normally we know that whatever the liquid is there, when it converts into the solid, that time in the cooling process, that time liquid is having the more volume एंड सॉलिड इज हैविंग द लेस वॉल्यूम. जब ये कन्वर्जन लिक्विड का सॉलिड में होता है कूलिंग प्रोसेस से, तो दैट टाइम दीज ऑल पार्टिकल्स विच आर मूविंग दे कम क्लोजर एंड फॉर्म वन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, और ये धीरे धीरे स्ट्रिफ होकर रिजिड होकर सॉलिड बन जाता है. एंड दिस इज व्हाट द रीज़न फॉर चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ वाटर. वाटर में ये केस. इतना ही नहीं, देर इज़ वन एक्सेप्शनल केस इन द वाटर, वी विल सी अहेड. नाउ अ सिंपल क्वेश्चन चिल्ड्रन, व्हाई आइस फ्लोट्स? आइस क्यों फ्लोट होते हैं? तो कोई बता सकता है? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द डेंसिटी. यू नो दैट in the solid state the density of this water substance, that is ice, is less as compared to the water, and that's why this particular solid substance, that is ice, float. लेकिन इसका पूरा डिटेल स्टडी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि why it floats. Now here you know that जब भी हम कोई भी कूलिंग प्रोसेस करते हैं, दैट इज़ लिक्विड वाटर टू द सॉलिड, दैट इज़ आइस, तो इस कूलिंग प्रोसेस में द हीट इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लिक्विड स्टेट, एंड ड्यूरिंग दिस सिचुएशन जब ये लिक्विड स्टेट में होता है, दैट टाइम इट्स वॉल्यूम इज़ मोर एंड डेंसिटी इज़ लेस, एंड व्हेन इट इज़ कन्वर्टिंग टू आइस, जब ये वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, दैट टाइम इट इज़ हैविंग लेस वॉल्यूम एंड मोर डेंसिटी. This is the simple concept behind the conversion of water into ice. And you know, if volume increases, density decreases, and if volume decreases, density will increase. लेकिन ये जब प्रोसेस होती है, that time मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इसके मास में कोई चेंजेस नहीं आता. आई हैव डन वन एक्टिविटी फॉर यू दैट आई विल शो यू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक. सो व्हेन द मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सो ये प्रोसेस होती क्या है? दैट इज़ नथिंग बट द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट terms, that is the expansion and contraction. तो ये सारा liquid to solid, solid to gases, gases to liquid, liquid to again solid, इसमें दो important चीज़ है, that is expansion, जहाँ पर when the things get larger, and the contraction where the things get smaller. So how this process begins, we will see. Now when the ice floats on the water, that time at 4 डिग्री सेल्सियस, जब पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है और पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जब आता है, उस वक्त एक थोड़ा सा अलग हट के कुछ इफेक्ट होता है. दैट इज़ व्हाट, एट दिस सिचुएशन द डेंसिटी इज़ वेरी वेरी हाई, and at this process the density is near about 1000 kilogram per meter cube. और इसी वजह से यहाँ पर डेंसिटी हाई होने की वजह से थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस वाटर बताता है. तो वो कैसे? लेट्स हैव अ लुक विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल presentation. Now in this we are having the two graph. ऊपर A वाला ग्राफ है, that is volume versus temperature. Volume versus temperature में यहाँ पर आपको बताया गया है कि पानी जब ठंडा होता है, आइस में कन्वर्ट होता है, दैट टाइम डेंसिटी एंड वॉल्यूम किस तरह से चेंजेस होते हैं. एंड बी डाउन यू विल सी दैट इज द बी density versus temperature graph. So in this density versus temperature graph, you will see that the water when it is cooled and at 4 degree Celsius, जब temperature 4 degree पर होता है, that time you will see at this process it is high, maximum बहुत high density होती है इस यहाँ पर, और at this process the volume is very लो. वॉल्यूम लो हो जाता है और डेंसिटी हाई हो जाती है. एंड यू नो दैट at 4 degrees Celsius the density of water increases and reaches maximum. So here
व्हेन यू कूल मोर, और अगर आप इसे ठंडा करो 4 से 0 डिग्री तक लेना चाहते क्योंकि हमें आइस बनाना है, सो ड्यूरिंग दिस सिचुएशन वाटर एक्सपांड्स, यहाँ पर वाटर एक्सपांड होता है एंड डेंसिटी ऑफ वाटर नाउ डिक्रीजेस। तो आप देख सकते हो कि 4 डिग्री के बाद 0 डिग्री होने तक धीरे धीरे डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है और वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है। और यही वाइस वर्सा होता है जो नॉर्मली लिक्विड में एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे नहीं होता है। This is what the exceptional case in the water, since at 4 degree water is heaviest, and that's why this heaviest water it settles down at the bottom, और ये bottom की तरफ पानी नीचे की तरफ चला जाता है और ऊपर की सतह में एट द टॉप मोस्ट लेवल ड्यूरिंग विंटर सीजन यू विल सी द वाटर इज ऑलवेज एट द फ्रीजिंग स्टेट। तो ऊपर जो ये है बर्फ फ्लोट होती है बिकॉज दिस इज व्हाट द इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट एट 4 डिग्री वाटर बिकम हेवी and settle at the bottom, and at the top there is a layer of ice, and that's why this is the reason ice floats on the water. I hope you understood this concept, but still we will see more in detail by few more slides. So now I think you got this beautiful picture and clear idea that water and ice both the things are shown here. और आप जान सकते हो कि किस तरह से आइस फ्लोट हो रही है और नीचे की तरफ पानी है क्योंकि वो पानी 4 डिग्री सेल्सियस तक ही है और वो हेवी हो चुका है. So you will see how it happens. So normally we know that hydrogen 2 molecules and oxygen 1 molecule. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ वाटर. तो आप ये सिंगल पिक्चर देख सकते हो, वहाँ पर ये सिंपल वाटर मॉलिक्यूल आपको दिखाया गया है. And we know the hydrogen bond with oxygen, and in liquid state the hydrogen bond are not strong. liquid state में second picture में आप देख सकते हो कि hydrogen bond strong नहीं होते हैं. they can break and reform. तो ये जो bond आपको दिखाई देता है वो break भी होता है, फिर से reform हो जाता है. एंड मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, कंटिन्यूस. ये मॉलिक्यूल्स जैसे उबलते पानी में बबल्स कैसे होते हैं उसी तरह यहाँ पर मॉलिक्यूल्स मूव होते रहते हैं. सो मॉलिक्यूल्स दे कैन गेट अरेंज्ड इन डिसऑर्डर पैटर्न, और ये डिसऑर्डर पैटर्न में है. यहाँ देखो, आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पर सारे ऊपर नीचे कैसे मॉलिक्यूल डिसऑर्डर है. एंड दिस पैटर्न विच लीव्स द एम्प्टी स्पेस. अब व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, अब 4 डिग्री सेल्सियस पे हम जानते हैं कि डेंसिटी हाई है, उस वक्त ये वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरह से देखो अरेंज हो रहे हैं. और धीरे धीरे जब आप टेम्परेचर स्लो लो करते हो, व्हेन इट गोज फ्रॉम 4 to 0 डिग्री सेल्सियस, नाउ स्लोली स्लोली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आइस. Ice begins to form and hydrogen bond here it becomes strong and stable. अब उसे stability मिल रही है और आप देख सकते हो एट 0 डिग्री सेल्सियस पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ कितना अच्छा ज्योमेट्रिकल पैटर्न शेप बना रहे हैं. हेक्सागोनल शेप आप देख सकते हो. दिस इज नथिंग बट द हाइड्रोजन ज्योमेट्रिकल लैटिस पैटर्न एंड विच हैव लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस. तो आप 4 डिग्री वाले फर्स्ट पिक्चर में देखो सारे मॉलिक्यूल्स किस तरह से है, और सेकंड पिक्चर 0 डिग्री में देखिए बिल्कुल अच्छा सा पैटर्न और बीच में एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रही है. इट इज़ इन द हेक्सागोनल शेप. सो दीज एम्प्टी स्पेस मेक्स आइस लेस डेंसर. ये बनाती है लेस डेंसर, यहाँ पर डेंसिटी लेस हो जाती है और ये एम्प्टी स्पेस यहाँ पर पैक हो जाता है आइस की वजह से एंड कॉजेस आइस टू फ्लोट ऑन वाटर. दिस इज़ व्हाट द स्पेशल केस. और इसी तरह से ये आइस पानी के ऊपर फ्लोट होता है एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ फ्री स्पेस विच occupies the larger
volume and it floats. So this exceptional case we know about the water. I hope you understood this concept clearly. Again and again you have to see this video with the help of textbook, so all the clear आप हो जाओगे, clear हो जाएंगे सारे concept. Okay, so this is what about the water, and we are studying page number 65, study of anomalous behavior of water using the Hobbes apparatus. यहाँ पर ये जो ग्राफ है 5.4 ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, दैट इज़ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. नाउ वन मोर थिंग कि सिर्फ आइस और फ्लोट होता है या ये सारी चीज़ें हम अपने लेबोरेटरी में भी एक्सपेरिमेंट कर कर देख सकते हैं. किस तरह से आप देखना चाहोगे? सो इट इज़ नथिंग बट सिंपल विद द हेल्प ऑफ होब्स एपरेटस. अब ये क्या है? सो बिफोर दैट वी विल सी व्हाट इज anomalous behavior of water. You know, water however shows an exceptional case. ये हम पहले ही जान चुके हैं कि ये exceptional case है because at room temperature when it is cool it contracts till 4 degree Celsius. यानी 4 डिग्री सेल्सियस तक ये कॉन्ट्रैक्ट होता है. बट इफ़ इट इज़ कूल्ड बिलो 4 डिग्री सेल्सियस टिल 0 डिग्री सेल्सियस इट एक्सपांड्स. यहाँ पर ये एक्सपांड होता है जबकि इन्हें यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. तो ये वाला एक्सेप्शनल केस है कि जहाँ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वहाँ वो एक्सपांड होता है और जहाँ एक्सपांड होना चाहिए वहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. सो on contrary, if water at 0 degree Celsius is heated, it contracts instead of expanding up to 4 degree Celsius. So this exceptional behavior of water between 4 degree Celsius and 0 degree Celsius is called anomalous behavior of water. How? That we are going to see with the help of experiment, that is Hobbes apparatus. ये है होब्स एपरेटस. इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर में मैंने एम्प्टी टिन बताया है कैसे होता है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि देर इज़ अ मेटालिक सिलेंडर कंटेनर. ये मेटालिक होता है. यहाँ पर आप कलरफुल दिखाने के लिए आपको ऐसे पिक्चर लिया है. जो ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल इन द मिडल ट्यूब आपको दिखाई दे रही है दैट इज़ द सिलेंड्रिकल कंटेनर. And you know that at the middle of the cylindrical container there is a flat ball जो यहाँ पर blue shape में है. flat ball है और दोनों तरफ बाउल के ऊपर और नीचे there are 2 thermometers, one at the upper region and other at the lower region, which is fixed to record the temperature during the process. So now we have to mix the freezing mixture of salt and ice. ice के छोटे टुकड़े करके salt के साथ mix करके इस बाउल में भरना है हमें. And now we have to record the temperature, but before that we have to fill the water into the cylindrical container. और ये water होना चाहिए 10 to 50 डिग्री सेल्सियस वाला ही. आप जानते हो कई बार ये होब्स एपरेटस का एक्सपेरिमेंट हमें नहीं दिखाई देता. क्यों? बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज आर हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. तो जब भी हम पानी लेंगे हम 10 डिग्री सेल्सियस टू 12-13 डिग्री सेल्सियस वाला ही पानी सिलेंडर में भरेंगे. नाउ बोथ द थर्मोमीटर्स शो द सेम टेम्परेचर. जिस टेम्परेचर का पानी हमने भरा है दोनों थर्मामीटर में वो टेम्परेचर आप देख लीजिए. नाउ एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेस ड्यू टू फ्रीजिंग मिक्सचर इट contracts and the density increases and goes on to the bottom of the container till 4 degree Celsius. और जैसे ही ये होता है कुछ समय के लिए the thermometer at the bottom shows temperature 4 degree Celsius. bottom अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जाते हो तो यहाँ पर नीचे वाले थर्मोमीटर को T1 कहा गया है और ऊपर वाले थर्मोमीटर को T2 कहा गया है. सो यू नो बॉटम वाले टेम्परेचर पहले हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस. देन आफ्टर सम टाइम व्हेन इट फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस वाटर इन द रीजन एक्सपांड इंस्टेड ऑफ
कॉन्ट्रैक्टिंग, यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज होती है, एंड दिस वाटर राइजेस टूवर्ड्स द सरफेस। जब ये टेम्परेचर फॉल होता है तो अब ये ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि डेंसिटी कम हो चुकी है और ये फ्लोट करने वाला है जैसे आइस। एंड after some time the upper thermometer shows the temperature of 0 degree। तो ऊपर वाले टेम्परेचर उसके पहले ही 0 हो जाता है, and at the lower thermometer it shows the 4 degree। so this we can see with the help of graphical representation, जहाँ पर टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो जिस तरह से T1 का टेम्परेचर पहले फॉल होकर 4 डिग्री तक आता है, एंड आफ्टर दैट T2 का टेम्परेचर धीरे धीरे फॉल होकर 4 डिग्री तक आता है। देन द T2 कम्स फर्स्ट, दैट इज इट बिकम्स 0 डिग्री, एंड आफ्टर सम टाइम the T1 it's slowly falls, and that the finally at the end both shows the 0 degree Celsius। तो थोड़े समय के बाद ये दोनों 0 डिग्री हो जाते हैं। इस तरह से ये anomalous behavior बताता है। In this way the anomalous behavior of water can be demonstrated in the laboratory by using Hope's apparatus। I hope you understood this clear about the anomalous behavior with the Hope's apparatus। so this you can try in your laboratory and you can prove, that is the time versus temperature graph, and this is what the reason behind how the water goes down at 4 degrees Celsius, and in this liquid molecules are in constant motion। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि substance in the solid state usually have higher density and less volume। so this is what exceptional case you can see the two layer, uppermost layer ऊपर की सतह पर आपको बर्फ दिखाई देंगी और नीचे आपको पानी, बिकॉज इट बिकम हेवी है, जो मैंने पहले ही कहा था, और हेवी होने की वजह से ये पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर आप पानी है, इसीलिए यहाँ पर लाइफ, जीवन नॉर्मल है, एक्वेटिक लाइफ, एंड दिस फ्रोजन वाटर हैज़ लार्जर वॉल्यूम एंड lower density, that's why you can see how the fish or the aquatic life survive। this is what the another concept, that at the topmost layer 0 degree Celsius and at the bottom it is 4 degree 1 2 3 4। तो ये 4 डिग्री है, पानी की लिक्विड स्टेट में है और यहाँ पर जीवन आराम से चल रहा है, दैट इज एक्वाटिक लाइफ इज गोइंग ऑन स्मूथली। I hope you understood that at 4 to 0 degree Celsius water has highest density and highly packed, so the water expands and it increases the volume and decreases the density, which you can see। not only this particular situation, all the life can continue and survive even though the temperature is below, you can say 0 degree Celsius। and this is what the application to aquatic life, यही बताता है कि aquatic life किस तरह से चल रही है। अगेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो कि किस तरह से टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ यहाँ पर है, टेम्परेचर डेंसिटी ये अलग और एक ग्राफ है। सेम कंसेप्ट है कि किस तरह से 0 to 4 डिग्री में मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम चेंज होता है, डेंसिटी चेंज हो जाती है at 4 degree Celsius। so I hope with the help of two graphs all the ideas regarding the volume and the density of water is clear। so this is what about the aquatic life, how they survive। and not only this, there are many countries, and in the cold countries you know that बर्फीले पहाड़ पर हमें चलना कितना मज़ा आता है। कई बार आप देख सकते हो कि जब कश्मीर आप जाते हो टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो वहाँ पर जो लेक है वहाँ पर ऊपर बर्फ़ होती है और नीचे पानी होता है और यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, बहुत बड़ा मज़ा आता है। सो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ अ पॉन्ड और लेक फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग winter season, and this shows the clear
about the anomalous behavior of the water. So let's remember few points. So 4 degree Celsius, यहाँ पर होता है the temperature drops, water decreases in volume and increases in density. Now 4 degree Celsius पर, now before पहला वाला था less than 4 degree, अब 4 degree Celsius पर क्या होता है? Water occupies the smallest volume and highest density, and at 4 to 0 degree Celsius the temperature drops and the water increases in volume and decreases in density. I hope all the things related to the exceptional case of water is clear. अब आप देख सकते हो मैंने ये एक्टिविटी की है. Yesterday I have tried this activity by taking the bottle. I have taken one bottle. In that bottle up to the black mark आपको red arrow दिखाई दे रहा है और bottle पर एक black color का mark दिखाई देगा. वहाँ तक मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी भरा था. आफ्टर दैट आई केप्ट दिस बॉटल इनटू द रेफ्रिजरेटर फॉर ओवरनाइट एंड इन द मॉर्निंग आई रिमूव द बॉटल. आप देख सकते हो कि एरो यहाँ पर आपको रेड एरो दूसरे पिक्चर में दिखाई दे रहा है. ये रेड एरो देखो हमारे पेन का मार्क वही है एंड यू विल सी लिटिल बिट अपर मोस्ट पार्ट इट इज़ फिल्ड. ये क्या है? इट बिकम ice. So this is how it expands and it converts liquid into the solid state. और during this conversion how the ice, ये जो ice है ये इसकी सतह आप देख सकते हो बढ़ चुकी है. दैट्स वाई व्हेन यू कीप द ग्लास बॉटल फिल्ड विद द वाटर, व्हेन यू रिमूव आपकी बॉटल में क्रैक आ जाएंगे. यही रीज़न है कि किस तरह से यहाँ पर वॉल्यूम और डेंसिटी में चेंजेस होने की वजह से आप देख सकते हो कि बर्फ़ बनने के बाद ये बढ़ जाता है. दैट इज़ एम्प्टी स्पेस ऑक्यूपाइड एंड इन दिस वे ये थोड़ी सी लेयर ऊपर की तरफ आ गई है, बढ़ चुकी है. और सिमिलरली आप देखोगे कि मैंने वही वाटर उसी बॉटल में से पानी, आप जब फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी फ्रीजिंग वाटर दैट इज़ द आइस, हाउ मच लेयर हैज़ इंक्रीज्ड एंड नाउ आई हैव बॉइल्ड द सेम वाटर. इसी पानी को मैंने बॉईल किया 100 डिग्री सेल्सियस पर. जब ये 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका, टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका, that time then I removed that water and again I filled into the bottle. तो आप देख सकते हो थोड़ा सा पानी नीचे की तरफ चला गया है लेयर. वाई? बिकॉज दिस हैपन ड्यू टू द वाटर कन्वर्टेड इनटू द स्टीम. एंड इस तरह से ये एक्टिविटी मैंने आपके लिए की है. आई होप यू लाइक्ड इट. इवन यू कैन ट्राई एट होम अंडर योर पेरेंट्स गाइडेंस. आप ये एक्टिविटी घर पर भी कर सकते हो. So this is what the simple activity related to the water. Now again you will see there is one more examples for this. I have taken few examples and this example is nothing but survival of aquatic plants and animals. We have already seen. Second example, cracking of rocks in winter and pipes conducting water in cold region burst in the winter. आप देख सकते हो कि किस तरह से ये पाइप क्रैक्स हो जाते हैं बिकॉज देर आर मेनी रीजन्स वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड, कंटिन्यूस स्नोफॉल होता है, बर्फ़ होती है, जिसकी वजह से वाटर पाइपलाइंस जो होती है इन दैट दिस वाटर इट फॉर्म्स इनटू द ice, that is the solid state, and because of that the pipeline that यहाँ पर ये क्रैक पड़ जाता है. जबकि ये बर्फ़ जब लिक्विड सॉलिड हो जाता है तो ये थोड़ा सा एक्सपांड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि किस तरह से पाइप में क्रैक्स हो चुके हैं. इसी तरह से विंटर सीजन में कई जगह पर हमें क्रैक्स मिलते हैं. नॉट ओनली दिस, यू विल सी द क्रैकिंग ऑफ रॉक्स. देखो अब किस तरह से पत्थर में, पहले पिक्चर में आप देख सकते हो इट इज़ अ माउंटेन. इन दैट माउंटेन ड्यूरिंग द विंटर सीजन स्मॉल 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 वाटर ड्रॉपलेट्स जो वहाँ पर जमे हो चुका है, ये पानी बहुत टेम्परेचर कूल होने की वजह से बर्फ़ बन चुकी है. व्हेन इट बिकम्स द आइस, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, द आइस ऑफ पर्टिकुलर वो एक्सपांड होने के बाद वो किस तरह से बढ़ चुका है एंड दैट गिव्स रॉक टू ब्रेक. इसकी वजह से पत्थर में भी
ब्रेक हो जाते हैं, थोड़े से कट्स पड़ जाते हैं। साइड के पिक्चर में आप देख सकते हो, इट इज़ टोटली आइस रीजन एंड दिस पर्टिकुलर पोलार रीजन, वहाँ पर आप देख सकते हो बड़े बड़े पहाड़ में भी दरार आ जाती है। इन दिस वे देर इज़ अ बिग cracks in the rocks and the mountains because of ice. So this is what few examples related to the same concept. And one more thing, why don't trees freeze? कई जगह पर आप देख सकते हो बर्फीले प्लेसेस रीजन में पेड़ पर भी तो बर्फ जमे हो जाती है, फिर पेड़ का क्या होता है? Why don't trees freeze and burst in the winter like cold pipes? ये क्यों नहीं होता? Because you know that the trees, they are having the closed vessels. It can press so hard that it freezes and expand. The burst like pipes and rocks जिस तरह से burst होती है, trees में क्या होता है? The fluid transparent tissues in the trees which is present in the xylem and फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम की वजह से यहाँ पर विच कैरीज द फूड वाटर थ्रू आउट द ट्री, ये पूरी तरह से पानी यहाँ पर जो होता है पूरे ट्री में जाइलम और फ्लोएम की वजह से थोड़े थोड़े जो कंटेंट होते हैं अंदर ऊजस होकर वो पूरी तरह प्लांट में फैल जाते हैं। एंड द सेम यू विल सी द क्रैकलिंग साउंड और गन शॉट पॉप वी हैव इन द वी हियर इन द फॉरेस्ट। और एक एग्जाम्पल है कि फॉरेस्ट में भी हम ऐसे कई बार गन शॉट पॉप की आवाज़ सुन सकते। अचानक ऐसे आवाज़ आती है, वाई? बिकॉज इन द विंटर it is the sound of trees freezing and bursting. So sometime it ट्रीज़ भी फ्रीज होकर बर्स्ट होते हैं। ये ऐसे बहुत घना जंगल जहाँ पे पोलार रीजन है वहाँ पर आपको ऐसी आवाज़ सुनाई देगी कि ट्रीज़ में भी बर्स्टिंग होता है। In this way, all the different concept related to the anomalous behavior of water shows with different examples. I hope you liked my session. अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज प्लीज़ लेट मी नो इन माई कमेंट बॉक्स. I hope you learned this topic very well. So you are watching my channel Tasneem's Vidnyan Shastra. Jai Hind.